آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب کے ہدیے جات ہم تک پہنچ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ کے ہدیے جات کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے چرچ کی جگہ لی ہوئی ہے، اور وہ 10 لاکھ ہم نے ان کو پے کرنی ہے، اور 22 لاکھ ہم نے ان کو پے کرنے ہیں۔ تو ابھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو آپ دیکھیں کہ ایمان پر ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو دیکھیں ایمان ہی سے دیکھیں پہاڑ ہٹائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بے شک یہ بہت بڑا پہاڑ ہمارے سامنے 22 لاکھ کی رقم ہے، لیکن ہم سب کی دعاؤں سے اور ہمارے ایمان کی سبب سے یہ پہاڑ جو ہے وہ میدان ہوگا، آمین، ان کی ماں کے اندر۔ تو آپ سب سے درخواست کی جاتی ہے کہ یوٹیوب پر ہمارے 2 چینل AG TV اور BW TV، یونیورسل گاڈ TV اور ڈیوائن ورلڈ TV کی اسکرین پر ہمارے واٹس ایپ نمبر بھی ہے، وہاں پر ہم دعائیں درخواست دے سکتے ہیں جو ہمیں ان چینل کے اوپر یونیورسل گاڈ TV اور ڈیوائن ورلڈ TV کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ تو ان سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کے نیچے جو اسکرین پر ہمارے نمبر چل رہے ہیں، واٹس ایپ کا نمبر ہے، اس پر آپ دعائیں درخواست بھیج سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارا جو ہے نمبر چل رہا ہے ایزی جیز کیش اور ایزی پیسہ، وہ بھی نمبر دیا گیا ہے، اور پھر ہمارے جو اکاؤنٹ کا نمبر ہے وہ بھی چل رہا ہے اسکرین کے نیچے۔ تو مہربانی سے جو اپنے ہدیے اور چندے اور ٹائز 10% دینا چاہتے ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ ان نمبروں پر وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں، تاکہ جو چرچ کی رقم ہم نے ادا کرنی ہے ہم ادا کر کے وہاں جا کر خداوند کی بات کر سکیں۔ یہ آپ کے تعاون سے ہی 10 لاکھ ہم نے پے کیے اور 22 لاکھ بھی ہو جائے۔ آئیے خدا کے جلال کے لیے روح القدس کے لیے دعا کریں۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو میں چاہوں گا کہ آپ ایک دوسرے کو نیا سال مبارک ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر جو سال سٹارٹ ہوتا تھا وہ 6 بجے سٹارٹ ہو جاتا تھا، شام 6 بجے۔ جب شام 6 بجتے تھے تو وہ ان کا سال جو تھا اگلا سٹارٹ ہو جاتا تھا۔ تو یہاں پر تو 12 بجے ہی سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو مگر ہم پھر بھی جو ہے آج کے دن، آج رات جو ہے وہ سال کے آخری دن کے اندر ہے، اور پھر جب اگلے دن کے اندر ہم خداوند کے حضوری میں آئیں گے تو پھر یعنی سال کے پہلے دن کے اندر، یعنی آخری دن کے اندر بھی ہم خداوند کی ورشپ کر رہے ہیں، اور پھر پہلے دن کے اندر بھی خداوند کی ورشپ کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ آئیے ہم سب مل کر زوردار تالیاں بجا کر خدا کے نام کو جاتے ہیں۔ آج کا جو میسج ہے میرا، نشان کی طرف دوڑنا، رننگ ٹو ورڈ دا گول، نشان کی طرف دوڑنا۔ تو آئیے میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے حوالہ نکالیے، فلپیوں 3 باب اس کی 13ویں آیت خداوند کے کلام میں سے۔ اے بھائیو، میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کہتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھتا ہوا نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں، تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا ہے۔ اور ایک ریفرنس میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے نکالیے، عبرانیوں 12 باب اس کی پہلی آیت۔ پر جبکہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ شکریہ سے بیٹھ جائیے۔ بڑی خوبصورت باتیں آج خدا کے کلام میں سے کرنے کو، نشان کی طرف دوڑنا، رننگ ٹو ورڈ دا گول۔ تو خداوند کے کلام کے اندر یہاں پر پولس رسول جس بات کو ہائی لائٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے سامنے نشان ہے، وہ ایک کھلاڑی کی مثال دے کر، ایک پلیئر کی مثال دے کر وہ کہتا ہے کہ وہ جیسے ایک پلیئر ہوتا ہے، کھیلنے والا کھلاڑی ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ نشان کی طرف
जाता है, यानी जो भागते हैं, जो दौड़ के अंदर हिस्सा लेते हैं, वो उसकी एग्जाम्पल देता है। और खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है, वो कहता है कि उनके सामने जो दौड़ते हैं, उनके सामने एक टारगेट होता है, निशान होता है, और उस निशान को उन्होंने क्या करना है, अचीव करना होता है, निशान के पास जाना होता है। और सब दौड़ते हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा, दौड़ते तो सब है, मगर इनाम को कितने लेकर जाते हैं? एक ही लेकर जाते हैं। आमीन। लिहाजा खुदावंद के कलाम में लिखा है, दौड़ो, ऐसे दौड़ो कि जीतो। हालेलुया। हमारी जो दौड़ है वो जीतने की है भाइयों, और वो टारगेट लेता है, उसका निशान का नाम क्या लेता है पौलुस रसूल? वो कहता है क्राइस्ट है। हमें उस पर निगाह रखनी है, उसे तकते रहना है। याद रखिए, जो निशान की तरफ तकता रहेगा, जो निशान की तरफ टारगेट रखेगा, अपनी निगाह रखेगा, वही जो है निशान को अचीव कर सकेगा। और अगर वो पीछे मुड़कर देखेगा तो वो गिरेगा। कभी भी भागने वाला, दौड़ने वाला कभी पीछे नहीं मुड़कर देखता, और अगर उसने पीछे मुड़कर देखा, इसका मतलब वो गिरेगा मुंह के बल और बहुत नुकसान उठाएगा। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि याद रखें, यहां पर पौलुस रसूल क्या कहता है खुदावंद के कलाम में? फिलिप्पियों 13वां बाब उसकी 13वां बाब उसकी 3रा बाब उसकी 13वीं आयत खुदावंद के कलाम में सुनिए। ऐ भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ता हुआ निशान की तरफ दौड़ा जाता हूं, ताकि उस नाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझ मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। वो कहता है, पिछली बातों को भुलाकर मैं क्या करता हूं? आगे बढ़ता हूं। जैसे भागने वाला, दौड़ने वाला जब दौड़ता है तो पीछे मुड़कर नहीं देखता। पीछे मुड़कर देखेगा, उसका लेवल जो है, उसका जो है वो लेवल आउट हो जाएगा, वो गिरेगा और बहुत खतरनाक हालात के अंदर चला जाएगा। मगर पौलुस रसूल इसलिए कहता है जो दौड़ते हैं फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखते। वो कहता है, अगर किसी ने दौड़ के अंदर, मैं और आप भी दौड़ रहे हैं दुनिया के अंदर, हमारी भी दौड़ जो है वो क्राइस्ट है, ताकि हम मसीह को पाए। और अगर पीछे मुड़कर देखेंगे तो भाई बहुत खतरनाक नुकसान उठाएंगे। आज दुनिया के अंदर जब साल का स्टार्ट होता है तो दुनिया के लोग क्या करते हैं? वो अपने प्यारों को, अपने अजीजों को जो मर गए हैं उनको याद करके रोते हैं, पिछली बातों को याद करते हैं। खुदावंद कहता है, यशाया के सहीफा के अंदर कहता है, पिछली बातों को भूल, तब मैं तेरी जिंदगी में नया काम करूंगा, तब नया काम होगा। तो अगर पिछली बातों को कोई शख्स लेकर रोता रहे या उन्हीं को डराता रहे, तो फिर याद रखिए आपकी जिंदगी के अंदर वर्क नहीं होगा, आपकी जिंदगी के अंदर नया काम नहीं होगा, आपकी जिंदगी के अंदर खुदा के काम नजर नहीं आएंगे, आप दुनिया के अंदर ही चले जाएंगे। दुनिया के लोग अपने अजीजों को याद करके रोते हैं, अपनी पिछली बातों को याद करके क्या करते हैं? रोते हैं, आंसू बहाते हैं। दुनिया के लोग जो नए साल के ऊपर आंसू बहाते हैं, रोते हैं कि हमारा फलां बंदा क्या हो गया, हमको छोड़ के चला गया। मगर पौलुस रसूल इस बात को बयान करता है कि भाइयों, पिछली बातों को छोड़ना पड़ेगा, तब मैं तुम्हारी जिंदगी के अंदर, खुदा कहता है, मैं तेरी जिंदगी के अंदर नया काम करूंगा। हालेलुया। तो भाइयों, हमें टारगेट की तरफ ध्यान देना है। तो अगर टारगेट से हटे तो फिर भाइयों बर्बाद हो जाएंगे, नुकसान उठाएंगे इस दुनिया के अंदर। लिहाजा मेरा और आपका टारगेट, मेरा और आपका निशान कौन है? यीशु मसीह को तकते रहना है। यानी यीशु मसीह पर नजर होगी तो देन हम दुनिया के अंदर भाइयों कामयाब होंगे, दुनिया के अंदर अच्छी जिंदगी बसर कर सकेंगे। वरना दुनिया के अंदर चले जाएंगे, खो जाएंगे आप भाइयों। दुनिया आपको ले बैठेगी, बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। हमारा ध्यान टारगेट पर होगा, निशान पर होगा। दौड़ने वाला दौड़ के अंदर क्या करता है? उसका निशान, उसकी नजर निशान पर होती है, वो निशान को ताकता रहता है। इस तरह पौलुस रसूल कहता है, मेरा और आपका निशान जो है वो क्राइस्ट है, यीशु मसीह है। आमीन। अगर पूरी बाइबल को आप पढ़े तो बाइबल के अंदर जितने भी खुदा के प्रॉफिट गुजरे, कितने भी नबी गुजरे, कितने भी सूरमा खुदा के रसूल थे, खिदमत करने वाले शिगिर्द थे, उनका टारगेट जस्ट एक ही था। वो बोलिए कौन? यीशु मसीह। हालेलुया। क्राइस्ट पर उन्होंने निगाह रखी। और खुदावंद के कलाम लिखा, हमारा बाप इब्राहिम, लिखा है कि वो क्या था, उसका निशान भी, हालांकि खुदा ने उसे कहा था कि मैं तुझे क्या दूंगा। खुदावंद के कलाम लिखा है, खुदा ने इब्राहिम से कहा कि मैं अपने नातेदारों को छोड़, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे, क्योंकि उसका बाप दादा जो था वो बुत परस्ती करता था, बुत बनाता था। तो खुदा ने कहा, इन बुत परस्तों से निकल, अपने नातेदारों को छोड़ दे।
اور خداوند کے کلام لکھا اس نے کوئی سوال نہیں کیا خدا سے, اس نے کہا سب کچھ اس نے چھوڑ دیا ابراہیم نے, اور لکھا خدا کو اس نے ٹارگٹ میں لیا. آمین. اس نے کہا خدا کو میں نے فالو کرنا ہے. اور پھر خداوند کے کلام میں لکھا ہے اس نے سارے ناتوں کو چھوڑا, ماں باپ کو چھوڑا, جو بت بنانے والے تھے لوگ ان سے یاریاں چھوڑی, اپنے دوستوں کو چھوڑا, اور لکھا ہے اس نشان کی طرف وہ دوڑنا شروع ہو گیا. خداوند کے کلام لکھا خدا نے اس سے یہ بھی کہا کہ میں تجھے ایسا شہر دوں گا جہاں پر دودھ اور شہد بہتا ہے, ملک کنعان دوں گا. مگر اس کا دھیان, خداوند کے کلام میں لکھا ہے وہ خیموں میں رہنے لگا, اس کا دھیان دنیا کی چیزوں پر نہیں تھا. دنیا حالانکہ اس شہر کے اندر پہنچ بھی گیا, مگر اس کا دھیان لکھا آسمانی شہر یروشلم کے اوپر تھا. ہاللیلویا. یعنی اس نے ٹارگٹ یہ لیا ہوا تھا کہ میں آسمانی شہروں پر شہر میں نے جانا ہے. میں دنیا کا نہیں ہوں, میں تو آسمانی شخص ہوں. لہذا اس نے ٹارگٹ پولس کی طرح لیا. جیسے پولس کہتا ہے ہم جب دوڑتے ہیں تو دوڑنے والے کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ نشان ہوتا ہے, گول ہوتا ہے. لہذا ابراہیم جو ہمارا باپ ابراہیم ہے اس نے ٹارگٹ نئے یروشلم کو لیا, اور پھر آج بھائیوں کو آسمانوں کے اندر موجود ہے. پوری دنیا کے اندر میرے اور آپ کا کیا ہے, وہ ہم کہتے ہیں باپ ابراہیم. ہاللیلویا. ہم سب کا باپ ہے کیونکہ اس نے نشان آسمانی شہر کو بنایا. اس طرح میرے اور آپ کی نظر بھی آسمانی چیزوں کے اوپر ہوگی, تب ہمارا بھائیوں پھر آسمانوں پر جا سکے گی, ورنہ دنیا کے اندر کھو جائیں گے. دنیا تو برباد کرنا چاہتی ہے. اور اگر آپ موسیٰ کو دیکھیں خداوند کے کلام میں, آپ دیکھیے موسیٰ جو تھا چھوٹا سا بچہ تھا, ملکہ نے پالا تھا, اور جب بڑا ہو گیا, جوان ہو گیا, تو بھائیوں اس نے دنیا کی بادشاہیوں کو ٹھوکر مار دی. حالانکہ بادشاہ بننے لگا تھا, بادشاہ ملکہ کا بیٹا تھا, اس نے بادشاہ کی سیٹ پر بیٹھنا تھا. اور خداوند کے کلام لکھا اس نے مسیح کی خاطر جب اس نے خدا نے اسے کال کی کہ تو اسرائیل کو ملک مصر سے نکال, تو لکھا اس نے ساری چیزوں کو, عیش و عشرت کو کیا کیا, اس نے ٹھوکر مار دی دنیا کی چیزیں. حالانکہ بنی اسرائیل کو چھڑا کر لے کر بھی جا رہا ہے, مگر پیچھے نظر نہیں ہے اس کی. حالانکہ ابراہیم اور خداوند کے کلام لکھا ہے جو موسیٰ تھا پیچھے جا سکتے تھے, واپس جا سکتے تھے اپنے شہروں میں, مگر انہوں نے پیچھے نہیں مڑ کر دیکھا. اس لیے خداوند کے کلام لکھا پچھلی باتوں کو بھلا دے تو پھر میں تیری زندگی میں کیا کروں گا, کام کروں گا, ورک کروں گا, پھر تجھے نئی باتوں میں لے کر جاؤں گا, نئے ویژن کے ساتھ لے کر جاؤں گا. اور بھائیوں اس سال کے اندر میرا اور آپ کا ٹارگٹ کیا ہے, کون ہے, مسیح ہے, کرائسٹ ہے. آسمانی چیزوں کا ٹارگٹ لیجئے, دنیا کی چیزیں, یعنی گھر چاہیے, بچوں کی شادیاں کرنی ہے, فلاں کام کرنا, فلاں کرنا, یہ بھی کام خدا کر دے گا. خداوند کے کلام لکھے ہے یہ دنیا کی چیزیں تو خدا ویسے ہی تمہیں دے دے گا, مانگے یا نہ مانگے. وہ کیا کرے گا, خدا ہمیں کیا کرے گا, وہ دنیا کی چیزیں تو مل جائے گی, مگر ہمارا ٹارگٹ کہاں پر ہونا چاہیے, یسوع مسیح ہمارا ٹارگٹ. خدا ٹارگٹ ہونا چاہیے, آسمانی شہر, آسمان کی چیزوں پر ہمارا ٹارگٹ نشان ہوگا. اس سے ہم نے وہاں پر جانا ہے. ہمیں تو میرا اور آپ کا ٹارگٹ جیسے ابراہیم کا ٹارگٹ تھا کہ آسمانی شہر میں جانا, موسیٰ کا ٹارگٹ اسرائیل کو لے کر جانا, وہ لے کر چلا اور ان کو مصر سے باہر نکالا. یہ ٹارگٹ تھا ان کی زندگی میں. اور خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ ابراہیم کا جو بھتیجا تھا لوط, اس کی بیوی, خداوند کے کلام لکھا ہے اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو کیا ہو گئی, نمک کا ستون بن گئی. بھائیوں پچھلی باتوں کو بھلانا ہوگا, تب خدا میری اور آپ کی زندگی کے اندر نیا کام کرے گا. ہاللیلویا. تو اگر پچھلی باتوں کو لے کر روتے رہیں گے, پیٹتے رہیں گے, سوچتے رہیں گے, تو بھائیوں میری اور آپ کی زندگی میں نیا کام نہیں ہوگا. پھر دنیا کے اندر ڈپریشن کے اندر چلے جائیں گے, پھر مصیبت کے اندر چلے جائیں گے, بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے. لہذا خداوند کے کلام کے اندر خدا ہمیں سکھاتا ہے پچھلی باتوں کو بھلانا پڑے گا, تب میں تیری زندگی کے اندر کیا کروں گا, بولیے, نیا کام کروں گا. اور خداوند کے کلام لکھا ہے موسیٰ واپس نہیں گیا, ابراہیم واپس نہیں گیا, انہوں نے پیچھے سے بھائی ختم ان چیزوں کو, پیچھے مڑ کر دیکھا, پرانی چیزوں کو نہیں دھیان دیا بلکہ آگے بڑھے. اور خدا نے پھر نئی نئی ویژن, نئی نئی رویا, نئی نئی باتیں ان پر آشکارا کی. اس طرح میری اور آپ کی زندگی کا بھی ٹارگٹ کون ہے, آسمانی چیزیں, خدا کا بیٹا یسوع مسیح. اس لیے وہ کہتا ہے کہ مسیح کو تکتے رہنا ہے. ہاللیلویا. تو پچھلی باتوں کو یاد نہیں کرتے رہنا. میں نے بتایا کہ لوط کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا پچھلی باتوں, میرا بھائی, میری بہن, میرا ماں باپ, میرے بچے, بھائی نمک کا ستون بن گئے. لہذا اگر زندگی کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں, زندگی کے اندر آسمانی چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, کرائسٹ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, پچھلی باتوں کو بھلانا ہوگا, تب خدا میری اور آپ کی زندگی کے اندر کام کرے گا. اور اگر خداوند کے کلام کے اندر آپ دیکھیں, اسحاق جو تھا,
इसहाक के बारे में लिखा है कि उसने सारा साल मेहनत की, और लिखा है उसने साल के आखिरी दिन, जैसे आज का आखिरी दिन है, उसने लिखा साल के आखिरी दिन क्या किया, 100% खुदा से हासिल किया। इस बात पे हम जोर देता नहीं जाए, यानी एक कम भी नहीं है, एक हिस्सा भी नहीं कम, आप देखिए उसने 100% खुदा से बरकत हासिल की। हालेलुया। वो भाइयों कुएं खोदते थे और मेहनत करते, सख्त मेहनत करते थे। जैसे इब्राहिम, उसकी एक 318 लोग उसके साथ होते थे भाइयों, इतने लोग उसके साथ, और उसकी आर्मी थी ये, और ये आर्मी भाइयों बड़ी जंगजू आर्मी थी उसके साथ, इब्राहिम के साथ इतने लोगों के साथ लेकर चला। और उसने खुदावंद के कलाम लिखा, उसने लिखा है कि जब साल स्टार्ट हुआ, जब फतह हासिल की, तो फिर सबसे पहले क्या किया, अपना टारगेट, उसका टारगेट था खुदा का 10वां हिस्सा खुदा की ज़ुबान में लाना। हालेलुया। उनके उसने मलके सदक के जो वहां का काहिन था, लिखा है मलके सदक को अपनी टाइट, अपना 10% दिया। अब देखिए इब्राहिम 10% दे रहा है। हम डरते हैं कि कहीं गरीब ना हो जाए, कहीं भूखे ना मर जाए। भाइयों, देने से कभी कोई भूखा नहीं होता। दुनिया के अंदर सबसे जो अमीर शख्स है ना दुनिया के अंदर, आप हिस्ट्री पढ़ें, वो भाइयों 10% देता था, तो खुदा ने उसे इतना ऊपर किया। तब तो वो भाइयों 99% खुदा की राह में देता और 1% ही रखता है। वो भी उसके जो बैंक इतने भरे हुए हैं, वो कहता है मुझे पता ही नहीं पैसे कितने हैं, मेरा इतना पैसा है, अनगिनत पैसा, गिना ही नहीं जा सकता। अब देखिए खुदा जैसे देंगे फिर खुदा भी वैसे देता है। जैसे इब्राहिम ने खुदावंद के कलाम लिखा है, इब्राहिम जो था वो देता था, खुदा उसे देता था। फिर इसहाक को खुदावंद के कलाम लिखा, साल जब उसने मेहनत की तो खुदा ने उसे 100% बरकत दी। आमीन। तो उसने खुदावंद की शुक्रगुजारी की। तो खुदावंद का भाई सब का जो टारगेट था वो खुदा था, वो खुदा को हासिल करना चाहते थे, वो खुदा को देखना चाहते थे, आसमानी चीजों को हासिल करना चाहते थे, और वो उन्होंने फिर उन चीजों को हासिल किया क्योंकि उनका टारगेट था खुदा। इस तरह मेरा और आपका टारगेट पौलुस रसूल कहता है वो कौन है, खुदा का बेटा यीशु मसीह। खुदा का बेटा क्या है? कभी आप यकूब की जिंदगी पे गौर करें ना, यकूब, खुदावंद के कलाम लिखा है यकूब खाली हाथ लाठी लेकर, लिखा है अपने बाप के घर से निकला और कुछ भी नहीं था उसके पास, मगर उसका टारगेट था कि खुदावंद मुझे बरकत दे, तब मैं अपना 10% तेरी हजूरी में दूंगा। उसने टारगेट में ले लिया कि मैंने खुदावंद 10% तुझे देना है, लिहाजा मुझे बरकत दे। और खुदावंद के कलाम लिखा जस्ट उसके बाद लाठी थी और कुछ भी नहीं था, ना तो कोई जानवर था, ना तो उसके पास थैली थी, ना तो उसके पास पैसा था, कुछ भी नहीं। मगर जब अपने मामू लाबन के घर में गया तो वहां पर, क्योंकि उसने उससे पहले ये दुआ की थी, खुदावंद मुझे बरकत दे, मैं 10% तुझे टारगेट में दूंगा, मेरा ये टारगेट है बरकत लेने का। तो वो बरकत लेना चाहता है। तो आप देखिए बरकत लेने के लिए उसने तो फरिश्ते से कुश्ती की, खुदावंद के कलाम में लिखा है। तो खुदावंद के कलाम लिखा जब वहां पर गया तो वहां पर उसने इतनी मेहनत की, और खुदावंद के कलाम लिखा है उसका मामू जो लाबन था वो टेंशन में आ गया कि इसके वसीला से मुझे बरकत मिलना शुरू हुई। हालेलुया। यानी हर चीज पर उसके बरकत आना शुरू हुई, उसकी भीड़ें बढ़ना शुरू हुई, आमीन, उसके जानवर बढ़ना शुरू हुए। उसने कहा सच बात है यकूब, तेरे साथ खुदा है। आइए इस बात की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसका टारगेट जो था खुदा से बरकत लेनी है और फिर 10% भी देना है खुदावंद को। तो उसने फिर खुदावंद की हुजूरी में लिखा है अपना 10% देता था, तो खुदा ने लिखा है उसे इतना अमीर कर दिया यकूब को। पहले उसने मेहनत की है, उसने कहा जो भेड़ घूम गई मेरे मामू ने मुझसे तलब की, कहता जो रात को चोरों ने चुरा ली तो मैंने वो भी उसे दी, उसने मुझसे तलब की, मांगी उसने मुझे जबरन दी, दे मुझे वो भेड़। तो मैंने इतनी मेहनत की, फिर वो भेड़ भी मैंने दी। कहता मैंने अपनी आंखों में नींद ना आने दी, यानी इस कदर सख्त मेहनत की। तो भाइयों सख्त मेहनत करने के बाद भाइयों खुदा ने उसे बड़ी बरकत दी। और फिर वो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि गौल के गौल जब वापस आया तो गौल के गौल उसके जत्थे थे, भेड़ बकरियां थी, दौलत, नौकर चाकर थे, आमीन, बीवियां थी, ये सब खुदा ने उसे बरकत दी। उसका टारगेट क्या था? मैं अपना 10% खुदावंद को दूंगा, मैंने खुदावंद से बरकत लेनी। मैंने बताया कि उसने तो कोई फरिश्ते के साथ कुश्ती लड़ी कि मुझे बरकत दे। हालेलुया। कोई बरकत चाहिए तो फिर भैया 10% खुदा की हुजूरी में लाइए। इब्राहिम का टारगेट था बरकत लेना। दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स अगर कोई था उस दौर के अंदर
तो बाप इब्राहिम था। आइए इस बात के लिए जरूर हालेलुया हालेलुया। खुदा से बरकत लेनी है तो टारगेट लीजिए। बेशुमार दुनिया के अंदर आज लोग अपने बिजनेस के तरफ से टारगेट लेंगे, अपना गोल सेट करेंगे, हमें किस तरीके से जिंदगी करनी बसर करनी है, किस तरीके से बिजनेस को बढ़ाना है, कैसे अपनी शॉप को मेंटेन करनी है। कुछ लोग अपने बच्चों के तरफ से स्केड्यूल बनाएंगे या टारगेट लेंगे, बच्चों को अब मेंटेन कर पाए या नहीं कर पाए। बच्चे भी अपने माँ बाप की तरफ से सोचें। आज सोचा जा सकता है कि माँ बाप के साथ कैसे चले, कलीसिया सोच सकती है खादम के साथ कैसे रवैया था, कितनी छुट्टियां की, कितना खुदावंद के साथ वफादारी के साथ चले, क्या रूटीन वाइज खुदा की हुजूरी में आए, दुआ के अंदर आए, दुआ बंदगी के अंदर ठहरे, खादम के साथ मिलकर खिदमत का काम किया। लीडरशिप सोच सकती है। इतनी बातें थी। डेली जो है रात सुबह हम 5:30 बजे दुआ कर रहे हैं। कितने लोग आए, कितने लोग सोच सकते हैं, कितने लोग टारगेट लेते हैं कि मैं आऊंगा, फिर नहीं आ सके, या आए कुछ दिन और फिर वापस उसी तरह रूटीन सर्दी की वजह से चलेंगे। बेशुमार ऐसे लोग मंगल को नहीं आ सके, इतवार को नहीं पहुंच पाए। भाइयों टारगेट लीजिए। इस साल के अंदर 2000 जैसे 22 के अंदर खुदा ने आपको संभाले रखा, इस तरह 2022-23 के अंदर टारगेट लीजिए कि खुदावंद तेरी हजूरी में एक छुट्टी भी नहीं करूंगा, तेरी हजूरी में तेरी इबादत करूंगा, दुआ में आऊंगा, सुबह सवेरे उठकर तेरे नाम को पहला दर्जा दूंगा, तेरी वर्शिप करूंगा। टारगेट लीजिए भाइयों, टारगेट लेना पड़ेगा। पौलुस रसूल ने सिखाया कि टारगेट लेना पड़ेगा, निशान की तरफ दौड़ना है। हम तो भाइयों हमारा ध्यान मसीह पर हो, हमारा फोकस क्राइस्ट पर हो, तो भाइयों तभी पिछली बातों को भूल जाना पड़ेगा और फिर नया काम खुदा हमारी जिंदगी में करेगा। तो टारगेट लिए। आज रात बेशुमार दुनिया के लोग टारगेट लेंगे, आप भी लें। ये दुआ करने का मकसद यही होता है कि आपको बताया जाए कि भाइयों आपको टारगेट लेना है, आपको अपनी जिंदगी पे गौर करना है। अगर पिछली जिंदगी खुदा से दूर थी तो आज माफी मांगी जा सकती है, खुदा माफ कर दे। 2022 के अंदर मैंने जो है वो गुनाह किया है, खुदा से दूर जिंदगी बसर की है। अगर दुनिया के अंदर रहे तो फिर आज वॉश किया जा सकता है। बाइबल के अंदर क्या लिखा है सुनिए, जो जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म के लिए हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो क्या करेगा, जिंदगी की फसल काटेगा। अगर आपने सारा साल 2022 का साल पूरा जिस्म के लिए बोया है, तो जैसे बदकारी गुनाह किया, नापाकी के अंदर रहे, खुदा की हजूरी में नहीं आए, दुनियादारी के काम के अंदर उलझे रहे, खुदा को याद तक नहीं किया, कभी आसमान की तरफ नजर ही नहीं की, कभी दुआ नहीं खुदा दुआ के अंदर उठे, तो अपनी जिंदगी में वॉच करें। तो अगर भाइयों जिस्म के लिए आपने फसल काटी, दुनियादारी के काम ही जिस्म को खुश किया है, तो फिर भाइयों अगर ये फसल काटी है तो फिर भाइयों ये फसल खुदावंद के कलाम लिखे हैं, ये जो जिस्म के लिए बोता है, जो काटता है बोता है, वो जिस्म के लिए हलाकत की फसल। हलाकत का क्या मतलब है भाइयों? हलाकत का मतलब मरना है। यानी इसका मतलब है कि 2022 के अंदर फिर भाइयों तैयार हो जाए। अगर वो माफी नहीं मांगेंगे 23 के अंदर जैसे 22 के अंदर प्रॉब्लम रही, इससे बढ़कर जो है वो जो अगर यही चीज काटी है, बोई है, तो फिर भाइयों लिखे 2022 के मुताबिक 23 के अंदर क्या होगा, फिर आप बीमारियों को काटेंगे। जो मैं और आप बोते हैं याद रखिए वही काटेंगे, जो इंसान बोता है वही काटेगा। जो कुछ आपने किया है वही आपके सामने आएगा, याद रखिए। और आज आपके पास चांस है, ये 2022 का आखिरी दिन है, और आगे अगला दिन जो है 2023 का पहला दिन होगा। आज अगर माफी मांगेंगे, खुदा से अपने टारगेट सही करेंगे, खुदा के साथ सुलह कर लेंगे, तो फिर खुदा माफ कर देगा। वरना भाइयों अगले साल के अंदर फिर आप क्या काटेंगे? मैंने बताया जो बोया जाता है वही काटा जाता है। जो फसल गाएंगे वही काटेंगे ना। अगर अमरूद का पौधा है, दरख्त लगाया है, तो फिर वहां सेब के दरख्त नहीं होंगे, वहां कौन सा दरख्त होगा? अमरूद का ही होगा। तो अगर सेब का किया उगाया है तो फिर सेब का होगा, वहां और तो नहीं होगा, वहां छलियां तो नहीं लगेंगी, ठीक है, वहां चावलों का तो नहीं लगेगा, उनका सीजन और होता है, इनका सीजन और। वो दरख्त है, ये पौधे हैं, ये डिफरेंट है चीजें। लिहाजा खुदावंद के कलाम के अंदर लिखे हैं, जो इंसान क्या करता है, जिस्म के लिए बोता है वो हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो क्या, हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। तो अगर आज आपने भैया 2022 के अंदर जिस्म के लिए बोया है, तो भैया 2022 के अंदर ये ना हो कि काटना पड़े, हलाकत आए। हलाकत का क्या मतलब है? बीमारियां आ सकती हैं,
दुख आ सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है, मुसीबत आ सकती है। लिहाजा मेरे और आपके पास ये चांस है कि आज रात हम खुदा के सामने झुककर अपनी गलतियों का इकरार कर सकते हैं, माफी मांग सकते हैं, ताकि 2023 के लिए अपने आप को क्या कर सके, तैयार कर सके। 2023 के लिए खुदावंद के कलाम के अंदर एक एग्जाम्पल लिखी है, यीशु मसीह ने बताया। सुनिए आखिरी एग्जाम्पल, खुदावंद के कलाम लिखे, एक शख्स था, उसने क्या किया, अपने नौकरों को कुछ तोड़े दिए, बाइबल में लिखा है। उसने एक को 5 तोड़े दिए नौकर को, उसने कहा ये तोड़े 5 देकर गया। उसने मैं बाहर जाने लगा हूं, बाहर के मुल्क में, दूर दराज मुल्क के अंदर। उसने नौकर को कितने दिए तोड़े? 5 तोड़े। एक को 2 दिए, एक को 1 दे दिया। पता है कहानी जानी नहीं। लिखा कुछ मुद्दत के बाद मालिक आया और अपने नौकरों से हिसाब लेने लगा, और पहले को उसने जिसके 5 दिए थे उसे कहा कि ला जितने तुझे दिए थे। उसने मालिक मैं 5 तूने दिए, 5 मैंने और कमाए, ये ले मालिक। उसने 10 तोड़े मालिक को दिए। उसने कहा शाबाश नौकर, तूने बहुत अच्छा काम किया, आ मेरी खुशी में क्या कर, शरीक हो जा। हालेलुया, खुशी में शरीक हो जा। तो फिर दूसरे को बुलाया, उन्होंने कहा कट मेरे तोड़े। उसने कहा कि मालिक तूने मुझे 2 दिए, 2 और मैं देता हूँ, ये मैंने कमाए हैं। उसने तू भी शाबाश, बहुत अच्छा काम कर, तू भी मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसके पास 1 था उसे क्या किया, उससे कहा निकाल मेरा 1। वो कहने लगा मालिक मैं डरा तुझसे, तू बड़ा सख्त है मेरा मालिक, तू जहां नहीं बोता वहां काटता है, लिहाजा मैंने तेरा जो तोड़ा तूने दिया तो मैंने दबा दिया जमीन के अंदर, ये ले अपना तोड़ा है। उसे कहा ये तोड़ा जिसके 10 है उसे दे दिया जाए, और इस बंदे को हाथों पांव से बांध कर इसे क्या किया जाए, अंधेरी कोठरी में डाल दिया जाए। इसने वही आगे, वही तू देता किसी आगे साहूकार को देता, फिर मैं उससे आकर साथ ले लेता, तू नहीं कर सकता। इसका मतलब टैलेंट है, खुदा ने जो बरकतें दे रखी हैं भाइयों, अगर उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर इनका हिसाब देना पड़ेगा। वो लाजा सी बरकत खुदा ने दी है, इनका भी हिसाब, अगर ये खुदा की राह में नहीं ना लाते, दुनिया के अंदर जाते हैं फिर बच्चे, फिर कहना बच्चे खराब हो गए, तो खराब कैसे हुए हैं, क्योंकि खुदा की हजूरी में नहीं है। इसी तरह भाइयों अपना माल अगर खुदा की हजूरी में नहीं लाएंगे, अपनी दीगर चीजें खुदा की नजर नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि वो दुनिया के अंदर चली गई। इसका मतलब आपको हिसाब देना पड़ेगा हर चीज का। अगर दौलत खुदा ने दी है उसका भी आपको हिसाब देना पड़ेगा, जो खुदा बरकत देता है उसका हिसाब देना पड़ेगा। लिहाजा खुदा का बेटा लिखा है वो इंसाफ करने वाला है। आमीन। खुदा याद रखिए इंसाफ करता है। क्या करता है? अगर खुदा इंसाफ ना करे तो खुदा नहीं है, वो कहता खुदा जो इंसाफ ही ना करे। खुदा जजमेंट करता है, इंसाफ करने वाला खुदा है। मेरा और आपका खुदा इंसाफ करेगा। भाइयों अगर खुदा की राह में सही नहीं चल रहे, जिस्म के लिए बो रहे हैं तो फिर हलाकत की फसल काटेंगे, और अगर रूह के लिए बोएंगे तो लिखा है हमेशा की जिंदगी की फसल काटेंगे। हमेशा के रूह का फल क्या है? खुशी। वाह जी वाह, जबरदस्त। ये सारी खुशी जो सबसे पहले खुशी है, तो मालिक क्या कहता है? जिसने 5 और कमाए उसने कहा शाबाश, आप मालिक की खुशी में शरीक हो जाओ। ये खुशी फिर उसे हासिल होगी। आमीन। काश के हमारा आसमानी बाप हमें कहे कि शाबाश हमें दे दे। आमीन। कितने खुशकिस्मत लोग होंगे जिनको खुदा का बेटा आकर, खुदा आकर कहे है मेरे शाबाश अच्छे नौकर, मेरी आसमान की बादशाही में तू दाखिल हो जा। तो भाइयों हम तो आसमान की बादशाही के लिए तैयार हो रहे हैं ना। लिहाजा खुदावंद के कलाम के अंदर जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं और आप खुदा की क्या है? भेड़े हैं। क्या है? बोलिए, बोलिए दोबारा, क्या है? मैं और आप खुदा की क्या है? तो भेड़े अगर गुम हो जाती हैं तो फिर उसे वापस लाया जाता है। खुदावंद के कलाम में क्राइस्ट ने, यीशु मसीह ने कहानी बताई। यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा कि एक शख्स की 100 भेड़े थी। कितनी थी? 200 थी? 100 कितनी? 300 थी? 100 सही है। 100 भेड़े 100, तो लिखा एक गुम गई। अब देखिए उसने 99 को छोड़कर लिखा एक ही तलाश करना शुरू किया। कैसा मालिक होगा? है ना कोई मालिक? वरना कहते एक छोड़ेगी यार की एक और ले लाइएगा, कुछ नहीं होता, छठो एक आवाज की यानी खजल रावण। बाइबल के अंदर लिखा है कि उसने 99 को छोड़ा और एक ही तलाश में चला गया चरवाहा, और लिखा है कि भेड़ का लिबास पहनकर।
और उस तरह की आवाजें भी उसने निकाली। तो आप देखिए भेड़ की आवाज निकाल कर वो उसे ढूंढ रहा है, और लिखा है जब वो किसी जगह पर अंधेरा था, आवाजें लगा रहा था, ढूंढ रहा था जंगल में, कहीं कोई शेर ना फाड़ दे, कोई रीछ ना फाड़ दे, कोई दुश्मन ना उसे फाड़ दे। तो जब वो ढूंढता ढूंढता, अब देखिए सुबह 3 बज गए होंगे, सारी रात ढूंढ रहा है, तो एक जगह पर आवाज दे रहा है, तो भेड़ की आवाज आई हल्की सी, वो भागा उस तरफ, भेड़ की तरफ जिधर से आवाज आ रही है। जब उस तरफ भागा तो उसने देखा कि एक भेड़, मेरा जो भेड़ का बच्चा था वो झाड़ियों पे फंसा हुआ है। उसने क्या किया, उसे निकाला और झाड़ियों से निकाल कर उसने क्या किया, अपने कंधों पर बैठा कर भेड़ खाना में वापस लाया। हालेलुया। इस बात में जोर देता है, यानी ये चरवाहे की जिंदगी है। इस तरह भाइयों बहनों, क्राइस्ट ने, मसीह यीशु ने, मैं और आप भेड़े जो भटकी हुई थी, खुदा से दूर थे, भाइयों खुदा हमें तलाश करता है। अगर एक भी शख्स जो खुदा से दूर हो जाता है तो भाइयों वो हमें तलाश करता है, हमें ढूंढता है, हम उसकी चरागाहों की भेड़े हैं। इसलिए तो वो दुनिया के अंदर आया। भाइयों हमारा तो चरवाहा इतना प्यारा है कि उसने हमारी खातिर जान देकर हमें बचा दी है। हालेलुया। तो हमारा तो ऐसा चरवाहा है, वो क्राइस्ट है, खुदा का बेटा। वो हमें ढूंढता है, तलाश करता है। अगर दुनिया के अंदर खोए हुए हैं तो आज वक्त है कि आप वापस आ जाए। खुदा का बेटा आपको पुकारता है और अपने कंधों पर, शोल्डर पर बैठाकर हमें कलीसिया में लाता है, ताकि कलीसिया में हम खुराक हासिल करें, कलाम को हासिल करें और जीते रहें। आमीन।